بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سلطان مراد نے حقیقی ایمان کی زندگی بسر کی، اس لیے وہ ایمان ہائے جہاد میں کود پڑا اور اپنا سب کچھ دعوت اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ سلطان مراد نے 30 سال تک اس حکمت اور مہارت کے ساتھ عثمانی سلطنت کی فرمانروائی کی کہ کوئی ہم اثر ان کی برابری نہ کر سکا۔ بیزنطینی مورخ ہالکوندلاس مراد اول کے بارے میں لکھتا ہے، سلطان مراد نے بہت سے اہم کام سر انجام دیے۔ وہ 37 مارکوں میں، خواہ وہ اناضول میں ہوئے یا بلقان میں، اترا اور تمام میں کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ وہ اپنی رعایا سے شفقت کا سلوک کرتا اور اس میں مسلم و غیر مسلم کی کچھ تمیز نہ کرتا۔ فرانسیسی مورخ کرینارد لکھتا ہے، مراد خاندان عثمان کی عظیم شخصیات میں سے تھا۔ جب ہم ان کی شخصیت کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو ہم انہیں اس عہد کے تمام یورپی حکمرانوں سے بہت بلند سطح پر پاتے ہیں۔ مراد کو اپنے والد سے ایک بہت بڑی سلطنت وراثت میں ملی جس کا رقبہ 95,000 مربع کلومیٹر تھا، اور جب وہ شہید ہوا تو اپنے بیٹے بایزید کو 5 لاکھ مربع کلومیٹر کی سلطنت وراثت میں دی۔ گویا اس نے 29 سال میں اپنے باپ اور خاندان کی چھوڑی ہوئی سلطنت میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ کیا۔ مارکے کسود میں مسلمانوں کی فتح جو نتائج مرتب ہوئے وہ یہ ہیں: علاقے بلقان میں اسلام کی عشائر اور قدیم اشراف میں شیوخ کا محض اپنے ارادے سے اسلام میں داخل ہونا، یورپی سلاطین کی بے چینی اور عثمانی دولت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا۔ ان میں سے بعض نے فوراً جزیہ دینے کی حامی بھر لی اور بعض نے عثمانیوں کی طاقت سے خوفزدہ ہو کر ان کے حملوں سے بچنے کے لیے خیر سگالی کا اعلان کیا۔ عثمانی اقدار ہنگری، رومانیہ اور ان علاقوں تک پھیلا گیا، دریا تیگ کے قریب وجوار تھے، حتیٰ کہ ان کا اثر و رسوخ البانیہ تک جا پہنچا۔ سلطان مراد کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا بایزید تخت نشین ہوا۔ وہ بڑا بہادر، حوصلہ مند، فیاض اور اسلامی فتوحات کے بارے میں بڑا جذباتی۔ اسی وجہ سے اس نے فوجی امور کی طرف خصوصی توجہ مضبوط کی اور اناضول میں قائم نصرانی امارات کو نشانہ بنایا، حتیٰ کہ 1 سال کے قلیل عرصے میں یہ تمام امارات سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئی۔ بایزید نے بلقانی اور اناضولی محاذوں پر اس برق رفتار سے حملے کیے کہ اسے السائقہ کا لقب دیا گیا۔ سربوں کے بارے میں بایزید کی پالیسی سربیا کے ساتھ بایزید نے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی، حالانکہ سرب میں عثمانیوں کے خلاف بلقانی اتحاد کے قیام کا اسباب تھے۔ اس سے بایزید کی غرض یہ تھی کہ وہ دولت سربیا سے اپنے اور ہنگری کے درمیان ایک دیوار کا کام لیں۔ بایزید ایک ایسے حلیف کی ضرورت محسوس کرتا تھا جو ایشیائی کوچے کی اسلامی ترکی فوج سلجوقی امارات کے بارے میں اس کی نئی عسکری پالیسی میں سے اس کے کام آ سکے۔ اس لیے بایزید نے سربیا والوں سے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ شاہ لازار جو مارکے کوسوو میں قتل ہو گیا تھا کہ دونوں بیٹوں سربوں پر اس علاقے کے رسم و رواج، قوانین، روایات اور عادات کے مطابق حکومت کریں، سلطنت عثمانیہ سے دوستی کے تعلقات رکھیں، جزیہ دیں اور سپاہیوں کی ایک مقرر کردہ تعداد مہیا کریں جو جنگوں میں ایک لگ یونٹ کی صورت میں سلطان کی فوج میں شامل ہو۔ سلطان نے شاہ لازار کی بیٹی سے شادی کر کے اس معاہدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ سربوں کے ساتھ افہام و تفہیم کے بعد 797 تابق 1393 کو بایزید بڑی برق رفتاری کے ساتھ بلغاریہ کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کی پوری آبادی نے اپنی گردنیں خم کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی سیاسی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بلغاریہ کا سقوط کیا عمل میں آیا کہ پورے یورپ میں کہرام مچ گیا۔ تمام یورپی طاقتیں شاہ مراد کے رعب و دبدبہ سے تھر تھر کانپنے لگیں۔ صلیبی مسیح فوجیوں نے بادلوں خواستہ ایکا کر لیا اور بلقان سے عثمانیوں کا نام و نشان مٹانے کی سبیل کرنے لگے۔ شاہ ہنگری سچیسمو اور پوپ نیہم بونیفام دولت عثمانیہ کے خلاف صلیبی مسیح یورپی اتحاد کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان اتحادوں میں سے بڑا اتحاد تھا جس کا 14ویں صدی عیسوی میں دولت عثمانیہ کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس اتحاد میں پہلے کی نسبت زیادہ سلطنتیں شامل تھیں اور ان تمام نے اسلحہ، فوجی سازوسامان، مال و دولت، فوجوں کی فراہمی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔
इस सलीबी हमला में तकरीबन 1,20,000 जंगजू ने हिस्सा लिया जो मुख्तलिफ कौमियों से ताल्लुक़ रखते थे, मसलन जर्मनी, फ्रांस, इंग्लिस्तान, स्कॉटलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जनूबी ज़ेरी इलाके और इटली के बाज़ अमारात। 800 से 1296 में सलीबी फ़ौजें हंगरी की तरफ बढ़ी, लेकिन सिपाहीसलाराना और सरदारों के दरमियान जंग से पहले इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। सच्चोमोन इस बात को तरजीह देता था कि सलीबी लश्कर इंतज़ार करे और जब उस्मानी लश्कर हमला करे तो वो तब जंग शुरू करे, लेकिन बाकी सिपाहीसलार इंतज़ार के हक़ में नहीं थे। उन्होंने बगैर किसी इंतज़ार के अपनी फ़ौजों को हमले का हुक्म दे दिया और वो दरियाए दानोब के साथ साथ नशीब में उतरते गए, हत्ता कि बल्कान के शमाल में निकोपोलिस तक पहुँच गए। यहाँ पहुंचकर उन्होंने शहर का मुहासरा कर लिया और शुरू में उन्हें उस्मानी फ़ौजों के मुकाबले में कामयाबी हुई, लेकिन बायज़ीद अचानक नमूदार हुआ। इसके साथ तकरीबन 1,00,000 सिपाही थे। ये तादाद यूरोपीय इसलिबी इत्तेहादी फ़ौजों के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी, लेकिन अस्करी निज़ाम व असलह के लिहाज से वो यूरोपियों पर फोकियत रखते थे। सो अक्सर नसरानी शिकस्त कोर्दा बाग खड़े हुए कि कई कत्ल हुए और इनके बहुत से कायद गिरफ्तार हुए। इस जंग में बेअंदाज मालो गनीमत उस्मानियों के हाथ लगा। वो दुश्मन के ज़ख़ीरों के मालक हुए। फ़ौजों का अमरानी के नशे में सुल्तान बायज़ीद क्या उठा, मैं इटली को फ़तह करूँगा और अपने गोरों को रूम में पितरस रसूल मसीह अलैहिस्सलाम के हवारियों को मसीह रसूल कहते हैं कि कुर्बानगाह में जो के दाने खिलाऊँगा। फ्रांस के बड़े बड़े रईस जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी गिरफ़्तार हुए, जिनमें काउंट डी नेव्स का नाम सरफरस्त है। सुल्तान बायज़ीद ने इन कैदियों को फ़दिया लेकर रिहा करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। तमाम कैदी रिहा हो गए। काउंट दी नेव को भी रिहाई मिल गई, जिसने कसम खाई कि वो जंग के लिए दोबारा नहीं आएगा। बायज़ीद ने कहा, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि अगर तुम्हें दोबारा मेरे खिलाफ मैदान जंग में उतरना चाहो उतर सकते हो, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं कि मैं यूरोप के तमाम मसीहियों से लड़ूँ और इन पर फतह हासिल करूँ। राजशाह हंगरी, जिसका गरूर इस हद तक बड़ा हुआ था कि वो अपनी फ़ौजी क़ुव्वत के बारे में इस कदर पर अतमाद था कि इसने कहा था कि अगर आसमां ऊपर से गिर पड़े तो हम इसे अपने नेज़े पर उठा लेंगे, वो भी फरार हुआ। इसके साथ रोडोस के घोड़सवार दस्ता का रईस भी था। जब ये दोनों भगोरे बहर असूद के किनारे पहुँचे तो नसरानी बहरी बेरे को लंगर अंदाज देखा। कूदकर इन कश्तियों में सवार हुए और सर पर पाँव रखकर यूं भागे कि किसी चीज़ का होश न रहा। निकोपोलिस के मार्के के बाद यूरोपीय माशरे की नज़रों में हंगरी की कदर मंजिल बहुत गिर गई और इनकी हैबत और सकूत का महल ज़मीन बोस हो गया। इस अजीम कामयाबी का बायज़ीद के दिल पर बहुत बड़ा असर हुआ, बल्कि यूरोपीय इस्लामी दुनिया खुशी के शादियाने बजाने लगी। बायज़ीद ने मशरक़ के इस्लामी फरमारवाओं की खिदमत में कासद रवाना किए और नसरानियों के मुकाबले में कामयाबी की खुशखबरी दी। बायज़ीद के कासद जब मुसलमान मलूक के दरबारों में पहुँचे तो मसीह कैदी इनके साथ थे। ये कैदी इन बादशाहों को तोहफे में दिए गए। नेज़ ये कि इस बात की हसी दलील थी कि बायज़ीद को यूरोप के मुकाबले में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बायज़ीद ने सुल्तान रूम का लक़ब अख्तियार किया, जो इस बात की दलील थी कि दौलत सलाह की विरासत का वो अमीन ठहरा और जज़ीरा नुमा अनाज़ोल पर इसे इक़्तिदार हासिल हो गया। बायज़ीद ने कारा में मकीम अब्बासी खिलाफत की खिदमत में भी सफ़ारत रवाना किया और इनसे मुतालबा किया कि इस लक़ब का इतराफ़ किया जाए, ताकि हम जिन इलाकों पर इसकी और इसके आबा-ओ-अजदाद की अमलदारी रही, इन पर कानूनी, शरई और सियासी तौर पर इनका कब्ज़ा तस्लीम हो जाए। सो आलम इस्लाम में इसके रब व दबदबा में बहुत इजाफा हुआ। अब्बासी खलीफा के हामी ममलूकी सुल्तान बरकोक ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि बायज़ीद इसका वाहिद ऐसा हलीफ है जो तैमूर लंग की फ़ौजों के ख़िलाफ़ इसकी मदद कर सकता है, जो दौलत मलूकी की और दौलत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बढ़ता चला आ रहा है। हज़ारों मुसलमानों ने अनाज़ोल की तरफ हिजरत की। ये लोग दौलत उस्मानिया की खिदमत करना चाहते थे। मुहाजिरीन में हर किस्म के लोग थे। कुछ वाकई सलीबियों के ख़िलाफ़ जहाद के थे और कुछ ऐसे थे जो इस अजीम सल्तनत की इक़्तिसादी और इल्मी खिदमत करना चाहते थे। जैसा कि इससे कबल वो ईरान, इराक़ और मावरल नहर के मुल्कों में इक़्तिसादी, इल्मी व सियासी मैदानों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके थे। और इसके साथ
साथ बाज़ लोग ऐसे भी थे जो एशिया व वस्ती पर तैमूर लंग के हमलों से खाइफ किसी महफूज पनाहगाह की तलाश में थे। निकोपोलिस की जंग से पहले बैजंतीनी शहनशाह हैद पर बायजीद दबाव सख्त करने और कुस्तुनतुनिया में मुसलमानों के अमूर का फैसला करने के लिए काजी के तकर्रर पर हुकूमत को मजबूर करने में कामयाब रहा। फिर कुछ ही अरसे बाद इसने बैजंतीनी दारुल हुकूमत का मुहासरा कर लिया। शहनशाह ने इस्लामी महकमा क़ज़ा की तश्कील, मसाजिद की तमीर और इस्लामी बरादरी के लिए शहर के अंदर 700 घरों की तज़हीक को मंजूर कर लिया। इसके अलावा बायजीद की खातर एक सीर अलाबादी वाले महल्ले के निसफ हिस्से को छोड़ दिया, जिसमें उस्मानी फ़ौज हिफाजती दस्ता ठहरा जो 6000 सिपाहियों पर मुश्तमल था। दौलत बज़ंतीनिया पर मुकर्रर जज़िया बढ़ा दिया गया। अंगूर और शहर से बाहर बाकी सब्जियों के खेतों पर उस्मानी खजाने ने पैदावारी टैक्स लागू कर दिया। इसके अलावा ये इजाज़त भी ली गई कि बज़ंतीनी दारुल हुकूमत में मुसलमान अज़ान पढ़ सकेंगे। मार्का निकोपोलिस में अजीम कामयाबी के बाद उस्मानियों ने अपने पाँव बल्कान में जमा लिए, जिसकी वजह से बल्कानियों के अंदर खौफ व हिरास फैल गया। बोस्निया और बुल्गारिया ने भी दौलत उस्मानी की अतायत कबूल कर ली। उस्मानी लश्करों ने नसरानी जंगजुओं का पीछा जारी रखा ताकि उन्हें किसी मैदान में वापस आने की हिम्मत न हो। सुल्तान बायजीद ने जजीरा नमा मोरा के हकाम को सजा दी जो सलीबी इत्तेहाद के लिए अस्करी मदद लेकर आए थे, और बैजंतीनी शहनशाह को सजा देने के लिए बायजीद ने मुतालबा किया कि वो कुस्तुनतुनिया इसके हवाले कर दे। सुल्तान के मुकाबले में शाह मानवेल ने यूरोप से इमदाद की अपील की, लेकिन बेसूद। हकीकत यह है कि कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा बायजीद दिल के जिहादी प्रोग्राम में बहुत बड़ी अहमियत रखता था, इसलिए वो एक लश्कर जरार लेकर बरा और बज़ंतीनी दारुल हुकूमत का सख्त मुहासरा कर लिया। इस पर हर तरह से सख्ती से ये मुहासरा बाकी रहा, हत्ता कि शहर फतह होने में चंद साइतें बाकी थीं, और यूरोप इस इंतज़ार में था कि आज या कल किसी वक्त इस कदीम दारुल हुकूमत का सकूत अमल में आता है कि सुल्तान एक नए ख़तरे से निमटने के लिए मुहासरा उठाकर मशरकी इलाकों की तरफ रवाना हो गया। तैमूर लंग और बायजीद के दरमियान तसादम। तैमूर लंग मावराइल नहर में मकीम एक शरीफ ख़ानदान से तल्लुक़ रखता था। 1369 में खुरासान के तख्त पर जलवा अफरोज़ हुआ, जिसका दारुल हुकूमत समरकंद था, और देखते ही देखते आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े हिस्से पर छा गया। इसकी खौफनाक और अजीम लश्कर पूरे एशिया में दिल्ली से लेकर दमिश्क तक और बहरुल अराल से खलीज अरब तक फैल गई। फ़ार्स, अर्मेनिया, फ़रात और दजला के बलाई इलाके, बहरुल कज़वीन से बहरुल सूद तक के दरमियानी इलाके इसकी सल्तनत का हिस्सा बन गए। रूस में वो कई इलाकों पर छा गया। दरियाए फोल्जा के साथ दूर तक फैले हुए इलाके और दून दनीर पर भी इसका झंडा लहराने लगा। इसने ऐलान किया कि वो पूरी दुनिया पर अपनी फतह के झंडे गाड़ेगा और पूरी दुनिया पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करेगा। वो अक्सर कहा करता था, यह ज़रूरी है कि ज़मीन पर सिर्फ एक शख्स हुक्मरानी करे, क्योंकि आसमान में सिर्फ एक अल्लाह है। तैमूर लंग बहादुरी, हरबी कबीरियत और सियासी महारत जैसी आला सफ़ात से मुस्तफ़िद था। वो कोई भी इक़दाम करने से पहले मालूमात जमा करता था और जासूस भेजता था, फिर हजलत से बचते हुए पूरी फरासत के साथ अहकाम सादर करता था। इसके रैब व दबदबे का ये आलम था कि वो जो हुक्म देता था लश्कर इसे कर गुजरता था। बहैसियत मुसलमान तैमूर उलमा, मजहबी अफराद, बिलखसूस सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्गों का दिल व जान से एहतराम करता था। तैमूर लंग बायजीद के दरमियान शिकल्स में मुख्तलिफ अमल और असबाब कार फरमा थे, जिनमें से चंद ये थे। इराक़ के वो अमीर जिनके इलाकों पर तैमूर ने कब्ज़ा कर लिया था, वो बायजीद के यहाँ पनाह गज़ीन हुए। इस तरह एशिया कोचे के बाज़ अमरा ने आकर तैमूर की पनाह ले ली थी, और दोनों जानब पनाह लेने वाले ये अमरा तैमूर और बायजीद को जंग पर अकसाते रहते थे। नसरानियों ने तैमूर लंग को कोशिश दी कि वो बायजीद पर हमला आवर हो और इसका खात्मा कर दे। तरफैन की तरफ से ऐसे खतूत तहरीर हुए जिन्होंने जलती पर तेल का काम किया। बायजीद के नाम एक खत में तैमूर लंग ने इसकी अहानत कर डाली और लिखा कि इसके ख़ानदान की असल पर्दाफा में है, और कहा कि मैं तुझे सिर्फ इसलिए माफ़ी देता हूँ कि आले उस्मान ने इस्लाम की बड़ी खिदमत की है। तैमूर लंग ने अपने ख़त के आखिरी ने बायजीद की शान को घटिया कि वो तुर्कों का सरदार है, जिसकी वजह से बायजीद तैश में आ गया और इसने इस चिकलस को कबूल करते हुए
واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ وہ تیمور لنگ کو تبریز اس کی سلطنت کے مرکز میں اس گستاخی کی سزا دے گا۔ اور اب اس سے بڑا عوامل یہ تھا کہ دونوں فرمانروا اپنی سلطنت کی توسیع چاہتے تھے، اور یہی چیز اس چپلس کا اصل محرک ثابت ہوئی۔